Hello and welcome to my channel. This is your host Rajeshri Das, and today we are going to talk about Chori. So I did a Instagram poll asking you guys ki do you want to see Chori or not. So I was little surprised that most of the people said yes, they are going to see Chori. When I saw Debuk on Amazon Prime, I was really disappointed because when I saw the trailer of Debuk, I thought that we have touched such topics which is new for Indian cinema. Like when we talk about horror films or horror genres, series, or anything, we lack some kind of reference of good horror films or web series. So here, we don't have much of a content that we can say that this is a good horror film or horror content. So when I saw Debuk's trailer, I thought ki this is something new that Indian cinema has not yet discovered. So I thought that it might be good if the implementation is very nice. But when I saw the film, one problem that I not notice is we have the idea, we know what we are going to do, we have idea, we have done our research very carefully, we have took such actors who have great potential also, but the thing is we are lacking in the implementation. We are not comfortable with the genre. We are not trying to portray the genre, but we are trying to cover all the things. So that was the problem in Debuk. I was really disappointed seeing that film because I was really looking forward to that. But when Chori's trailer was released, I knew the concept was not that new or anything new we are going to see regarding the concept or the idea. But here also the question arises about the implementation, like how it is going to be implemented. And also when I saw Nusrat in this film, I thought that this is very nice for her because obviously she has done lots of other films, commercial films, and this is way different from her previous work. So I was really looking forward to this film, though I was not keeping my expectations very high. So this is me telling you all the good and bad aspects of the film so that you can ultimately decide whether or not to watch Chori on Amazon Prime. So let's start. फर्स्ट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट नुसरत. अब यहाँ पे हम नुसरत की बात करें तो शी हैज़ इवॉल्व एज एन एक्टर. ऑब्वियसली फ्रॉम दिस फिल्म यू कैन रियलाइज दैट शी इज़ नॉट सम बबली गर्ल और शी इज़ नॉट जस्ट अ कमर्शियल फिल्म गर्ल. शी कैन डू अ वे डिफरेंट थिंग्स दैट यू haven't even expected from her. And यहाँ पे बात ये हो जाती है कि लाइक जब ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म या फिर लीड रोल में जब ये फिल्म को वो कर रही हैं और वो अपने कंफर्ट जोन से काफ़ी अलग तरीके से काम करने वाली हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ ही जाती है, पहली बात. दूसरा ये वो खुद से भी लाइक एक प्रेशर बन जाता है कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, आई शुड डू वेरी प्रॉपरली एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे आई वुड अप्रिशिएट नुसरत फॉर टेकिंग सच project. And also she has done very good work because you can seriously see her acting graph go high. So I'm very impressed with her acting. It is not extraordinary, but जिस तरीके से हम उन्हें पहले देख चुके हैं in previous films like सोनू के टीटू के स्वीटी and प्यार का पंचनामा, so these films are very commercial films. So यहाँ पे उनका रोल काफ़ी बेसिक था, उतना कुछ चैलेंजिंग नहीं था, उतना कुछ उससे एक्सपेक्ट भी आप नहीं कर सकते थे. बट उसके बाद जब आप इसे लाइक ड्रीम गर्ल में भी आपने अगर इन्हें देखा होगा तो वहाँ पे भी शी डिड अ वेरी डिसेंट जॉब जितना उनका कैरेक्टर का डिमांड था, बट नथिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वर्क. तो यहाँ पे हमें एक नई नुसरत देखने को मिलेंगी और ये चीज़ आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा दैट यू आर सीइंग नुसरत इन सम कैरेक्टर विच इज़ different from her previous characters. Next aspect is predictability. So there are twists and turns. I'll talk about that later on. But जब एक film predictable हो जाता है तो you lose all the interest and you stop getting entertained. So यहाँ पे I don't know about you guys or how you see a film, but when I see, I start questioning the scenarios or scenes, and it's my habit that I will
start predicting that now this will happen or that will happen. Though when I was seeing this film, I wasn't asking much of a question to myself. It was very predictable for me, and if you will see it very carefully, you would also predict the scenarios or the upcoming scenes. So it was quite a bummer कि मुझे पता चल जा रहा है कि हाउ दिस फिल्म विल इवॉल्व एंड व्हाट विल बी द रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल दैट. सो इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जब प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो देयर इज़ नॉट एनफ थिंग टू बी गेट एक्साइटेड अबाउट. स्पेशली हॉरर फिल्म में अगर आप बात कर रहे हो तो द सस्पेंस इज़ द की. लाइक जो सस्पेंस होता है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, वो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करते हैं. यहाँ पे ये दोनों चीज़ जो होते हैं ना, थ्रिलर और हॉरर फिल्म्स में जो ट्विस्ट टर्न्स और सस्पेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जब प्रेडिक्टेबल हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ना किल हो जाती हैं. तो यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, लाइक यू आर नॉट दैट, लाइक यू डोंट गो इनटू फिल्म्स एंड यू थिंक कि अब ये होगा वो होगा, यू डोंट क्वेश्चन मच, तो आपको ये थोड़ा एंटरटेनिंग लग सकता है अगर आप बहुत इन्वॉल्व हो जाओगे विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग. बट अगर आप क्वेश्चन करने लगोगे और थोड़ा एनालाइज करने लगोगे तो आपको ये फिल्म जो है ना प्रेडिक्टेबल मालूम पड़ेगी, और आप काफ़ी सारे सीन्स को ना पहले से प्रेडिक्ट कर चुके होगे, तो वो थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट क्वेश्चन में कम हो जाता है. बैकग्राउंड म्यूज़िक. देखिए, जब हम बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करते हैं तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा या जो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि कभी कभी साइलेंस भी वो चीज़ें कर देता है जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक या एक डायलॉग नहीं कर सकता. लाइक सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन साइलेंस जो होता है ना ऐसे हॉरर फिल्म्स में या इंटेंस सीन्स में, साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. बैकग्राउंड म्यूज़िक, जैसे कि आप लोग अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और जितने लोग मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हैं और मेरा रिव्यू देखते हैं, तो यू गाइज नो कि मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक पे कितना अच्छा लगता है ये बोलना कि लाइक बैकग्राउंड म्यूज़िक वॉज जस्टिफाइंग द सीन और द डायलॉग. बट जब बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको डिक्टेट करने लगता है कि आपको कैसा फील करना है, तो वो मेरे लिए कितना बड़ा बमर होता है, यू गाइज नो. तो यहाँ पे जब इंटेंस फिल्म की बात करें, हॉरर फिल्म की बात करें, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. अब बैकग्राउंड म्यूज़िक है एक सीन को इंटेंसिफाई भी कर सकता है, लेकिन वहीं पे आप साइलेंस को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. लाइक साइलेंस भी कभी कभी ऐसी चीज़ें कर देता है जो डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं कर पाते. लाइक अगर आपने उरी फिल्म देखा होगा, तो जब विकी कौशल के ब्रदर इन लॉ को अंतिम सलामी दी जा रही होती है, तो द वे ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज इमोशन, टीयर्स, एंड हाउ ही वॉज होल्डिंग हिमसेल्फ बैक फ्रॉम ब्रेकिंग आउट. सो वो जो फीलिंग है, वो जो साइलेंस होता है, वहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं है, एंड द गर्ल, द डॉटर, जिस तरीके से वो डायलॉग बोलती है, देयर इज़ नो बैकग्राउंड म्यूज़िक, नॉट इवन अ सिंगल बैकग्राउंड म्यूज़िक. दो द मॉड्यूलेशन एंड द वॉइस मॉड्यूलेशन हैज़ बीन डन देयर, बट नो बैकग्राउंड म्यूज़िक वॉज देयर. सो जो इम्पैक्ट होता है ना, वो एक डायलॉग डिलीवरी में भी हो सकता है विदाउट गिविंग अ बैकग्राउंड म्यूज़िक. एंड ऑल्सो कभी कभी साइलेंस भी आपको बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर देता है, बिकॉज योर फोकस विल only be on the facial expression and the scene going on in your mobile, theaters or any screen. तो यहाँ पे हम साइलेंस को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. अगर आपने बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स देखे होंगे, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ हॉरर फिल्म्स की, तो आप वहाँ पे एक साइलेंस ना बहुत अच्छे से महसूस कर पाओगे, बिकॉज साइलेंस ना आपकी क्रिएटिविटी को ओपन कर देता है. जब देयर इज़ नो म्यूज़िक, स्पेशली थ्रिलर फिल्म्स में, सस्पेंस फिल्म्स में, ऐसे हॉरर फिल्म्स में जब साइलेंस होता है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग. आप अपना एक स्टोरी बिल्ड करते हो, आप अपने दिमाग में अलग एक क्रिएशन करते हो. तो वो जो होता है ना, एक क्रिएटिविटी ओपन करता है. आप जैसे भी उसे सिनेरियो को आप देखना चाहते हो, जब तक साइलेंस है, जब तक नेक्स्ट सीन में जो है ना आपको ये रिवील नहीं किया गया है कि क्या होता है, क्या ट्विस्ट है, क्या टर्न है, तब तक आप अपने दिमाग में एक नया स्टोरी बिल्ड करते हो. तो वो काफ़ी एंटरटेनिंग होता है. अगर आप इस बात को समझ पाओगे और नेक्स्ट टाइम से इस तरीके के फिल्म देखोगे और मेरे इस बात को याद करोगे, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और बहुत एंटरटेन होगे अगर ऐसे फिल्म्स को आप देखोगे. तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है
वो बहुत इंटेंस है लेकिन जो है ना फिट नहीं बैठता। और यहाँ पे साइलेंस जो है ना, जो मैं बात कर रही हूँ, उसे बहुत नज़रअंदाज किया गया है। स्टीरियोटाइप, देखिए ये फिल्म जिस थीम पे बेस्ड है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है। तो उसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलेंगे जो कि जनरली होते हैं। लाइक कैसे लोग फीमेल को एक पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का वहाँ ट्रीट किया जाता है, एंड कैसे कैसे सुपरस्टिशियंस हैं लोगों के दिमाग में जो आज भी लोग मानते हैं। उन सारे चीज़ों को ये फिल्म एक तरीके से कन्वे करने की कोशिश की है। तो काफ़ी माइन्यूट सा है, ज़्यादा उसके ऊपर लाइक ये फिल्म की एक खासियत है कि इसने एक टॉपिक को पकड़ा है और उसी के ऊपर रिवॉल्व हो रहा है। इन्होंने सब तरफ चीज़ों को नहीं फैला करके रखा है। दे वॉन्ट टू कन्वे सम मैसेज कि कैसे लाइक एक इवॉल्व होता है एक कैरेक्टर, या फिर कैसे किसी भी तरीके से रिएक्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हुआ है वो इम्पॉर्टेंट रखता है। तो वो सारी चीज़ों को लिटिल डायलॉग्स, सीन्स एंड सिनेरियोज से कन्वे करने का कोशिश किया गया है, लेकिन ओवर द टॉप नहीं गए हैं। तो दैट्स वेरी गुड अबाउट दिस फिल्म कि उन्होंने सब तरफ अपने हाथ नहीं फैला करके रखे। जो टॉपिक उन्होंने पकड़ा है उसी के ऊपर उन्होंने काम किया है। दो थोड़ा बहुत इधर उधर से उन्होंने आपको थोड़ा बहुत सिनेरियो दिखाने की कोशिश की है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, अब जब हम हॉरर फिल्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट होता है ट्विस्ट और टर्न्स का, ये तो वी ऑल नो। तो यहाँ पे जब हम ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से लैंड कर पाते हैं, कुछ अच्छे तरीके से लैंड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए इसमें की गई हैं। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न सीन्स को ऐसे लिखे गए हैं जो एक इंटरेस्ट इवोक कर सके या एक सस्पेंस इवोक कर सके एक व्यूअर के माइंड में, बट वो प्रॉपरली नहीं दिखाया गया है। लाइक द मैसेज इज़ ऑल्सो लाइक द जो स्टोरी है, जो स्टोरी टेलिंग है या जो स्क्रीन प्ले है, उसे उतने कॉम्पैक्ट वे में नहीं लिखा गया है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर अगर आपका हुआ होगा तो आप ना मिस कर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा एक बार के लिए कि मूवी किस तरीके से चल रही है। ये मैं बात कर रही हूँ सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो इट इज़ वेरी प्लेन सिंपल, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब सेकेंड हाफ में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है, तब वो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले, एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स ज़्यादा डालने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा रिवॉल्व करने लगता है एक ही चीज़ के इर्द गिर्द, और वो प्रॉपरली कन्वे नहीं किया जाता है जो मैसेज है जो ये उस सीन्स के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स को बहुत बारीकी से रखना चाहिए था, एंड थोड़ा सा ये देखना चाहिए था कि वो लैंड कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज मैसेज। इस फिल्म का जो मैसेज है वो है लाइक हाउ अभी भी एक सुपरस्टिशन लोगों के दिमाग में चल रहा है, कैसे एक सेक्शन है सोसाइटी का जो कुछ चीज़ों पे बिलीव करती है, एंड ऑल्सो फीमेल फिटिसाइज के बारे में इस फिल्म में बात किया गया है। बट द मैसेज इज़ नॉट कन्वेड प्रॉपरली। यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, एक्टिंग, बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल देखो तो थोड़ी कमी रह गई है, लेकिन डज द मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे इज़ इम्पैक्टफुल। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हो जाता है। अगर आप एक मैसेज के थ्रू एक फ़िल्म को बना रहे हो या फिर आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हो, लाइक एक फिल्म है जो आपको कन्वे करना चाह रहा है कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, एंड दिस इज़ लाइक मिडिल पार्ट, लाइक ग्रे जो जोन होता है, लाइक ब्लैक और वाइट है और बीच में जो ग्रे है, ये जोन है। तो ये भी अगर वो कन्वे करना चाह रहे हैं तो क्या वो प्रॉपरली हो रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो मैसेज है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जो फिल्म भी यहाँ पे जिस तरीके से कन्वे करने की कोशिश की है वो बहुत डिसेंट एफर्ट करती है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है इतनी बड़ी चीज़ का, इतनी बड़े मैसेज का जो इम्पैक्ट होता है वो उतने अच्छे से आपके ऊपर नहीं आता है, and the message is not conveyed properly. So that was all the good and bad aspects of the film, so that आपको डिसाइड करने में ईजी होगा कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है उसके बाद ये रिव्यू देख रहे हो तो डू टेल मी कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, एंड क्या आप मेरे सारे पॉइंट्स के साथ सहमत हो या फिर कोई पॉइंट है जो आप ऐड करना चाहते हो। डू टेल मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर होस्ट राजश्री दास signing off. Stay connected for more such content.